Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Watch all videos carefully twice and write with fair hand. Okay? Don't cheat your parents and us. Okay? Now you all know that we have completed our fourth chapter and today we are going to start a fifth chapter, that is coal and petroleum. Okay? Uh, you all know that in our daily life we use a large number of materials for our basic needs. Some of these materials are found in nature, whereas others are man-made. Yes or no? Air, water, sunlight, coal, petroleum, natural gas and minerals are obtained from nature. Okay, so they are called natural resources. And other hand plastic हो गया, synthetic fibers, pants, drugs, medicines, explosives, they are man-made materials. Okay, you know very well natural and man-made. We already discussed in our previous classes. Okay, now next is resource. start करते हैं. एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड कॉल्ड रिसोर्स. जो भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज की जाती है अपने द्वारा, वो सारे कहलाते हैं रिसोर्सेज. और जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं या नेचर से हम प्राप्त करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, मेन ग्रुप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्स के भी 2 मेन ग्रुप्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स अक्से जो हमेशा रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे. एंड सेकंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, जो ख़त्म हो जाएंगे नेचर में, जिनको हम काफ़ी लंबे समय तक उनका यूटिलाइज ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा उस दिन वो ख़त्म हो जाएंगे. यस और नो? ओके, नाउ फर्स्ट इज inexhaustible natural resources. Those natural resources which are present in unlimited quantity, okay, in nature and are not likely to be exhausted by humans, called inexhaustible natural resources. Okay, वो नेचुरल रिसोर्सेज की जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और एग्जॉस्टेड मीन्स यूज्ड अप, जो ह्यूमंस के द्वारा अधिक मात्रा में भी यूज़ किए जाने पर वो कभी फिनिश नहीं होंगे या ख़त्म नहीं होंगे, वो कहलाते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एयर, सनलाइट एंड वाटर. ओके, सेकंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. Those resources which are present in a limited quantity in nature and can be exhausted by human activities called exhaustible natural resources. Okay, वे resources जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है ना. क्वांटिटी मीन्स मात्रा है जो लिमिटेड मात्रा में है और जो एग्जॉस्टेड यूज किए जाएंगे ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ में और जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, कहलाते हैं exhaustible natural resources. For example, coal, petroleum, natural gas and minerals. Is it clear? Exhaustible and inexhaustible resources. Okay, next topic is fossil fuels. They are the remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago, called fossil fuels. Okay, जब काफ़ी मिलियंस ईयर्स पहले जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पृथ्वी के नीचे या अर्थ के नीचे दब गए थे, बरीड मीन्स दब जाना, उनसे जो बना वो कहलाते हैं सारे फॉसिल फ्यूल्स. उनसे बने कोल बना, पेट्रोलियम बना एंड नेचुरल गैस बनी. तो ये सारे तीनों चीज़ें ये क्या कहलाती है? फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, coal, petroleum and natural gas are called fossil fuels because they were formed by the decomposition of the remains of prehistoric plants and animals.
buried under the earth long ago. Okay, now next process means how fossil fuels were formed. Okay, how fossil fuels were formed. Okay, ये कैसे बने. The plants and animals which died millions of years ago were buried deep in the earth and got covered with mud and sand. ये नीचे पृथ्वी के नीचे दब गए पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स थे. In the absence of air, the chemical effects of heat, pressure and bacteria converted the buried remains of plants and animals into fossil fuels. तब उनके जो एयर की एब्सेंस थी, वहाँ पे एयर नहीं थी, तब प्रेशर से ओके बैक्टीरिया वगैरह के रिएक्शन से या केमिकल रिएक्शन से वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, let's discuss about coal first. It is a hard black combustible mineral that consists mainly of carbon. ये एक हार्ड होता है, ब्लैक कंबस्टिबल मीन्स जलाने योग्य, जो जलता है ना, कंबस्शन पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो जलते हैं ना, उनको बोलते हैं हम कंबस्टिबल. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. It is found in deep coal mines under the surface of the earth. Okay, बहुत गहरी माइंस होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है. Okay, now formation process. कैसे बनता है कोल. Coal was formed by the decomposition of large land, plants and trees buried under the earth about 300 million years ago. Okay, about 300 years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Dense means होता है बेटा thick या घने जंगल हुआ करते थे. Due to natural process like earthquakes, volcanoes and floods, these forests were buried under the surface of earth. काफ़ी जो नेचुरल प्रोसेस हुई, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फ्लड्स, दिस फॉरेस्ट वर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. दब गए ये पृथ्वी के सतह के नीचे. एज मोर सोइल डिपोजिटेड ओवर देम, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उन पे जमती गई. दे वर कंप्रेस्ड, वो दबते गए नीचे. ओके, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ and in the absence of air, the wood of buried forest, plants and trees was slowly converted into coal. Okay. Sorry. Due to high pressure की वजह से and high temperature से inside the earth, पृथ्वी के अंदर, and the absence of air की absence में the wood of buried forest, plants and trees were slowly converted into coal. जो wood थी plants की, वो slowly धीरे धीरे convert हो गई किसमें, coal में. Is it clear? Coal is a source of energy. It is a source of energy. It is mainly carbon. When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. अगर हम कोल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एक बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ऐसे एक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन कोल हो गया ना, और ऑक्सीजन इसने एयर से ली, बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ कोल. कोल के यूजेज, क्या क्या यूजेज हैं. कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़. फ्यूल के रूप में होम्स में और इंडस्ट्रीज़ में कोल यूज़ किया जाता है. कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में भी किसका यूज़ किया जाता है, कोल का. कोल इज़ यूज्ड टू मेक कोल गैस विच इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल. कोल से क्या बनाई जाती है, कोल गैस. ओके, वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है, मीन्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोल इज़ यूज्ड टू मेक कोक. कोल का यूज़ किया जाता है कोक बनाने में. अर्लियर कोल वाज
used as a fuel to make steam to run steam engines of trains। पहले के ज़माने में या प्राचीन समय में कोल वॉज यूज्ड एज ए फ्यूल, कोल यूज़ किया जाता था एज ए फ्यूल स्टीम टू रन स्टीम इंजन्स। पहले कोल से या उसकी स्टीम से इंजन्स चलते थे ना ट्रेन्स के, उसमें भी कोल वॉज ऑल्सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। कोल का यूज़ किया जाता है एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। अंडरस्टूड? आई थिंक टुडे इज enough for today. Remaining topics we will discuss in our next video, so watch video carefully and write notes with fair hand. Thanks and have a nice day.